Tomorrow, actually, I will go to the college, so that's why I will take one class test. Okay, during my class, so I will go on the way. So that's why tomorrow I will take one class test because principal may also advised to take one class test very recent. So that will be better. So the syllabus is the first chapter what I have covered. That means in your syllabus that is your second, isn't it? Kmap, SOP, POS, okay, all these things. So किसी को भी डाउट हो तो बोलो जीके फ्लिप फ्लॉप में, ट्रुथ टेबल में और क्लॉक डायग्राम में, ठीक है क्या? Someone said, are you present? Yeah. So ये था तुम्हारा जीके फ्लिप फ्लॉप, ओके. सो अच्छा, some of the students facing problem, they are writing message to me. अच्छा अच्छा. So now we start T flip flop, okay. So T flip flop, basically listen carefully. T flip flop nothing but the toggle flip flop, okay. T for toggle.
ओके। तो T is sorted here, देखो, but in the case of deep flip flop there was a net not gate, okay, between these two inputs. So यहाँ पे क्या है देखो, it is directly connected to the lower gate. So that means either you can use 0 0 or 1 1, isn't it? Because they are sorted. So that is 0 0 or 1 1. So why it is called toggle? This basically 0 0 में तुम्हारा output क्या होगा? No change होगा. So only we are getting the output when t is equal to 1. So t equal to 1 means j is equal to 1, k is equal to 1. So that means the output will be toggle. Okay, when the clock pulse is present. So that's why the input is t is equal to 0. Okay, so output q means, what is the meaning of that? That means as you are giving t is equal to 0, so that means both the inputs will be 0 and 0, so no change. So the output will be q. So no change means it will be the previous state. So that's why it is q. Now if you apply 1, so that means 1 1. Okay, so toggling is there. So that means when t is equal to 1, so internally we are giving j is equal to 1, k is equal to 1. So jk 1, j and k both are 1. So definitely, as I have seen just previous experiment, the output will be toggle. So it will be change of the previous state. The current जो है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. So if the current output is 0, so next output will be 1. Now if present output is 1, so next output will be 0. So alternatively it will change 0 to 1, 1 to 0, 0 to again 1. So that is the way. So similar kind of operation is seen in the case of T flip flop if T is equal to 1. Okay. So that will be tested experimentally. Okay. So initially you have to power on, until unless you are making the power on, it will never act. So clock is 0, t is 0. Sorry, I have clicked print wrongly. So I avoid it. So it will add. So serial number 1, clock is 0, t is equal to 0. Correct. So q is equal to 0, qr is equal to 1. That's equal no change. Now make t is equal to 1, clock is present. Okay. Or keep t is equal to 0 pehle. Now add. So clock is present, t is equal to 0, then also no change condition. So irrespective of the gate, SR, JK, DT, if both the inputs are 0 0, so output will be no change conditions. If you will know that. Irrespective of the flip flop type, if clock is 0, then also no change. If clock present, then inputs are 0, then also output will be no change. So that is similar kind of operation for every flip flop. Now make t is equal to 1. So that is the beauty of the flip flop. Now clock is 1. So add them. So क्या था, 0 था, 1 हो गया. Okay. So in the case of T flip flop, only the toggling, T for toggle. So in the case of JK flip flop, when JK is equal to 1, that is called toggle. In the case of T flip flop, if both the inputs are 1, then it is called T flip flop. Only that is available. So that's why, देखो, T is equal to 1. So पहले क्या था, 1 था, 0 हो गया. So that's why toggle. Now T is equal to 1, clock is applied. So क्या होगा, toggle हो जाएगा. So 1 0 हो गया. फिर t is equal to 1, clock is present, add this 1 0 हो गया.
अगेन t is equal to 1, क्लॉक इज प्रेजेंट, ऐड करो, क्या हो गया देखो 1 0 हो गया. So again apply t is equal to 1, clock is present, and so फिर भी toggle. So when t is equal to 1, so always it will be toggling. तो देखो यहाँ से 1 0 0 1 1 0, फिर 0 1 हो गया, 1 0 हो गया. So that is the case if you apply t is equal to 1 and clock should be present. Okay, until unless clock is present, output will never get. So देखो clock is present, so आउटपुट देखो ये क्यू है. सो क्या था 0 1 1 0 0 1, ओके 1 फिर 0 0 फिर 1. if you apply once again, so that high will be low. देखो this is 1, this is clock is present. So now देखो यहाँ पे that 1 should be 0. देखो when I am just adding it, it will go down. देखो हो गया, down हो गया. So that is the beauty of the circuit. But still having any doubt, you can ask me. As I am seeing you don't have any doubt, okay, you don't have any query, so you are so intelligent, okay, so that is also very good. So that is the principal operation of deep flip-flop, and we have shown you the operation practically by simulating the circuit. Now किसी को भी doubt है तो बोलो. So we have completed so many experiment number 6 चल रहा है, but it is we have done 5 experiment. बीच में एक एक्सपेरिमेंट वो रन नहीं होगा यहाँ पे, वो इनकम्प्लीट है. So those experiment number 6, that means totally we have completed 5 experiments. So that is not a joke. That is not a joke. So up to 6, but we have not covered, I think 4. Okay, because that is not running here in this interface. That's why. But after that, from 7 to last, we have not covered the theoretical classes. So that's why completed. So in the next class, we'll go for verify binary to gray or gray to binary conversion using NAND gates only. Okay, I think you have studied that in theoretical classes, so we'll go for that. But multiplexer demultiplexer हो गया क्या तुम लोगों का? I think that is No, not sir. not done till now. Okay, so that's why we'll go for that. But theoretical के लिए ये practical के लिए वो जो theoretical requirement होगा वो हम बता के बोल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो तुम लोग तुम्हारा वो समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं है. So ये जो है डिजाइन वेरीफाई ऑर्बिट सीरियल इन पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, वो भी तुम्हारा समझ में आ जाएगा इफ आई डिस्कस इट. टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन है, तो ये तुम्हारा काउंटर है या रजिस्टर है, तो लगभग ये जून मास खत्म हो जाएगा. तो हम लोग बैठे रहेंगे क्या, तो हम लोग एस्टिमेट तो करेंगे. फिर हम रिपीट करेंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगा 12 एस्टिमेट, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ रिपीट करेंगे दोबारा. तो अच्छा, और जो मैंने एक चीज तुमको बोल रहा था, तुम लोग देखे क्या वो तुम्हारा जो DELD जो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट बोल के 2 यूट्यूब शेयर किए हैं. Yes, sir.
किसी को देखा है क्या? यस सर देखे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। तो क्लास जो मैंने बोला लेक्चर जो, तो ध्यान से सुने थे क्या? उतना टाइम नहीं है सर। हाँ? आप तो दे दिया, हम लोगों के पास टाइम थोड़ा है। आई नो दैट, दैट इज नॉट a joke, I am just joking. But as you are having lots of class every day, isn't it? Starting from 9 a.m. to 4 p.m. Okay, every day you are having class, not uh, I think Saturday also. So you don't have any class. I think only the Sunday. So I know you are having so pressure, but still good things you have to collect. Uh, Electronic students, fourth sem, they are doing their coding. Okay, I have taken few classes. So you are also my students. I am taking also your class. So that's why I have shared the lectures videos on your group, because I am not taking your mini project class. I am not assigned, but still I am providing you the material, and those are self motivated. Okay, so you can see the videos, you can observe the videos, you can watch the video. After having some problem, so you can also ask me. Not necessarily students can ask me the question regarding any project. You can also ask. If among your you are having 65, 67 students almost. So among all these, if 2 or 3 students are interested, okay, and that is my success. And that will be my success. So that's why I am giving the lectures. And after next class, completion of the next class, I will again share. So don't worry about that. And that is a beautiful platform in this pandemic situation. Okay, that is very good. Just like your virtual lab, जो तुम लोग पास ये है, so without having lab equipments, you are doing your lab work. And I think here at least 60% it is क्या बोलूं, 100% तो नहीं है, लेकिन 60% तो काम हो रहा है। ठीक है, बट वो जो प्लेटफॉर्म मैंने तुमको दिया है प्रोजेक्ट के लिए, वो 100% काम में है, क्योंकि वहां पे जो तुम कोड लिखोगे, that code is also applicable when you are going to design practically or really. So that same code is applicable. So if you design, if you are writing some codes here, so you can preserve all those code for future. So how many students have seen? I got the one answer, and who have seen the? Yes, sir. I also. बोलो तुम्हारा नाम क्या है बाबू? स्वप्नशील. ओ स्वप्नशील, अच्छा अच्छा। और पहले कौन बोला? सर तुम्हारा सुमित। सुमित, तुम्हारा नाम ही मेरा दिमाग में रहेगा ना, इसलिए मैंने बोला सर सुमित। सुमित। सुमित, अच्छा सुमित, पूरा नाम क्या है बाबू? सुमित कुमार महतो। अरे सुमित कुमार महतो, अच्छा अच्छा। तो हम तो बांकुड़ा से हैं, पुरुलिया से हैं, इधर है। इधर तो महतो सर आप बताएं। बताते हाँ हैं ना। सर आप बताएं। हाँ हाँ हाँ, मेरा एक दोस्त था, मैंने बोला आई थिंक मिहिर कुमार महतो, ही इज माय बुजुम फ्रेंड from five standard to MTech. Okay, 5 standard to MTech we study jointly. Okay, and PhD में अलग हो गया, वो PhD नहीं किए हम लोग, PhD ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, फिजिक्स लिख के जमा सबमिट कर दिया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो यही बात है, तो दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट है ना। तो मैंने क्या बोला कि वो जो वीडियो मैंने भेजा है ना, तो जब तुम्हारा टाइम होगा तो तुम देख भी सकते हो। ठीक है, काज में आएगा, बहुत काज में आएगा, काम में आएगा, बहुत काम में सर आएगा। उसमें जो स्टूडेंट है वो कौन लोग है सर? हाँ सर उसमें जो स्टूडेंट लोग है वो कौन है सर? अपने कॉलेज के हैं? हाँ हाँ, हम लोगों का ही है, इसी का है, इसी का तो मैं टीचर हूँ। और इसी का जो मिनी प्रोजेक्ट है वो
आई में साइन है उधर एचओडी ने मेरे को साइन किए हैं। तो वो लोग बोला कि सर हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, आर्डिनो के लिए कुछ भी नहीं जानते, हम लोग ब्लैंक है, वो नाम ही ओनली सुना है वो तो आर्डिनो। कोडिंग रोबोटिक के लिए होता है ना, रोबोटिक तो आर्डिनो। हाँ हाँ, रोबोटिक तो बहुत दूर की बात है, पहले तुमको तो कोडिंग सीखना है। जनरली यू गो फॉर रोबोटिक्स ऑल दिस थिंग्स। ओके, माइक्रो कंट्रोलर का भी सर उसी तरह कोडिंग होगा? हाँ बाबू, माइक्रो कंट्रोलर की है। देखो माइक्रो कंट्रोलर तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर है ना इस सेमेस्टर में तुम लोगों का? माइक्रो प्रोसेसर है क्या? नहीं है सर, नहीं तुम लोगों का माइक्रो प्रोसेसर नहीं है सर, है नो इस हाँ माइक्रो प्रोसेसर 6 या 7 सेम में। हाँ हाँ माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो लेकिन वो जो माइक्रो 8051 तुम जो पढ़ोगे ना, जो तुम्हारा सिलेबस में है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर में काम हो सकता होगा, लेकिन वो टाफ होगा, ठीक है। वो माइक्रो प्रोसेसर कोडिंग ज़्यादा टाफ है और वो बार में भी करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो आर्डिनो है ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है ना। तुमको हेक्स कोड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हेक्स कोड नहीं लिखना है, तुम सी कोड टाइप का एक कोड लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और वो लोग समझ जाएगा। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वहाँ पे तुमको हेक्स कोड लिखना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसलिए ये भी माइक्रो कंट्रोलर बेस है, लेकिन तुम माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ने से भी काम चलेगा ये, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज से ही डिप्लोमा में पढ़े थे सर। पढ़ देना। तो तुम लोग डी टू डी जो है, तुम तो बहुत सारे स्टूडेंट है उधर जो एक बार 805 बोला। हाँ, तो 8051 8051 तुम तो पढ़ चुके हो, 8086 8085, हाँ माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़े पढ़े हैं। थे? हाँ पढ़े थे तुम। माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा है बहुत, आई थिंक वो 2 सेमेस्टर में है शायद। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन काश तुमको पढ़ना होगा, ये मैंने बार बार बोला, तुम्हारा एचओडी भी बोलेगी देखो, क्योंकि अटेंडेंस जब कम होगा ना, ये ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में तुम लोग क्या देखेगा, हाँ ये तो प्रैक्टिकल क्लास नहीं हो रहा है ना, तो अटेंडेंस तो पूरा ही पूरा चेक करेगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, अटेंडेंस चेक करेगा। वो जो हम लोग जो तुम्हारा जो टेस्ट ले रहा हूँ ना, क्विज बोलो, है क्लास टेस्ट बोलो, जो भी बोलोगे वो भी हम लोग देखेंगे। और जो मिड सेम होगा, हाँ मिड सेम होगा, ये सब कुछ देखेगा। तो देखो, तुम क्लास में नहीं है, तुम्हारे क्लास में अटेंडेंस 30% है, तो वो लोग क्या समझे, ठीक है, क्लास नहीं किए हैं तो कैसे वो लोग पढ़ेगा। तो ये बात है, इसलिए तुम्हारा जो दोस्त लोग है सबको बोल दो कि क्लास भाई सबको पढ़ना पड़ेगा, क्लास में प्रेजेंट होना, हाँ मस्ट है, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि मेरे हाथ में वो नहीं है, हम तो ये तुम्हारा अटेंडेंस भेज दूंगा, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, दूसरा मैम क्या करेगा, कमिटी क्या करेगा, सो वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ये तो हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, जो क्लास में प्रेजेंट है वही हम भेजेंगे। और वो लोग एक्शन लेने के लिए बोलेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला प्लीज कम टू द क्लास, प्लीज ज्वाइन द क्लास, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन इन दिस ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और तुम क्या करो, 1-2 दिन तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन जो एब्सेंट होगा ना वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पास 30% अटेंडेंस है, 40% अटेंडेंस है, तो ये तो काम नहीं होगा। 75% तो मिनिमम है, यूनिवर्सिटी नहीं तो पढ़ेगा, कॉलेज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 75% अटेंडेंस, as I have the knowledge, as I know, as far as my knowledge, 75% तो अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है वो लगेगा सिर्फ। इसलिए मैंने बोला जो स्टूडेंट का अटेंडेंस थोड़ा कम है वो रेगुलर हो जाएगी। बहुत टाइम है, बहुत हमारे पास बहुत टाइम है, जुलाई पूरा जुलाई क्लास होगा, ओके, तो इसलिए बहुत टाइम है। बी सीरियस, कीप योर पेशेंस, एंड वन थिंग,
if you have any doubt regarding not only my class also, whenever you are doing all the classes, if you are having any doubt, you ask the teacher directly. Okay, no issue at all. क्योंकि ऑनलाइन में ये तो प्रोग्राम होगा कि कोई टीचर तुम्हारा फेस को नहीं देख पाए, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तुम बोलोगे तो हम लोग जान पाएंगे, हम लोग जान have the idea whether you are able to understand or not। इसलिए मैंने जो बोला जे डाउट है तो बोलो, तो डाउट होगा तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या होगा, वो नेक्स्ट वर्क में चले जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में चले जाएंगे, नेक्स्ट लैब में चले जाएंगे, ये बात। तो स्टिल वी हैव डन our today's lab, that's RS flip-flop, JK flip-flop, G flip-flop and D flip-flop. Okay, so we have verified the truth table. Okay, no issue। तो बोलो, किसी को भी डाउट हो तो बोलो, और बीच बीच में वो जो प्रोजेक्ट का जो मैं वीडियो दूंगा वो भी तुम लोग देखोगे ना। तो पास तुम्हारा कोई डाउट होगा तो तुम भी बता सकते हो, ये सब ये क्या है वो क्या है, लेकिन ये जो लैब है ये तुमको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 experiment we have covered। So in the next class we go for some other lab sessions, so we can see as it is virtual, so in a single day we can cover 2-3 experiments, but that is not practicable actually, that is not feasible। इसलिए मैंने एक एक करके हर रोज एक एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड आई आल्सो चेक योर लैब कॉपी व्हेन आई विल फ्री throughout the week, I will check and I will put your marks also, okay। So you have to submit your lab copy। इस हफ्ते में कोई सबमिट किए हैं क्या? तो वेरिफिकेशन एंड इंटरपोलेशन ट्रुथ टेबल एक नंबर बहुत सारा स्टूडेंट सबमिट किए हैं, 2 नंबर। So I will give you the place where you can submit your experiment number 2। I will also give you the place in Google Classroom for submitting experiment number 3, experiment number 4, okay, experiment number 5 and experiment number 6। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 शायद हम लोग नहीं किए हैं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम नहीं लिखेंगे, हम 1 2 जो हम लोग किए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 होगा ना वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर गेट लैच होगा। हाँ, और आज जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 होगा, क्योंकि बीच में हम लोग एक छोड़ चुके हैं 4 का, तो इसलिए एक नंबर पीछे से चला जाइए। ये जो 6 है यहाँ पे, तो हम लोग लैब कॉपी में 5 लिखेंगे, ठीक है, समझ गया ना। आज तो 6 नंबर में बोल के स्टार्ट किए हैं, वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ आरएस जेके फ्लिप फ्लॉप, बट प्रैक्टिकली इट इज 5। वी हैव कवर्ड 5 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। For this 4 number of experiment actually we have not done it, ठीक है। तो ये बात है, और जो सब क्लास तुम लोगों का हो रहा है ना क्लास, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में किसी को भी डाउट हो तो बोलो। नहीं तो हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो पहला जो मॉड्यूल मैंने पढ़ाया that is your in syllabus, I think that is module 2, you go through, okay। So I am just leaving the class and you start your study, start your reading, okay। And we'll have 20 marks questions, 20 mark questions, and you start your test during our class time, okay।
तो सर मिड सेम या क्लास टेस्ट क्या बोले? वही जो हम लोग लेते हैं ना वीक में, हर वीक में एक क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट। ओके सर, हाँ हाँ ओके सर। वही, मिड सेम नहीं है बाबू। मिड सेम होगा तो नोटिस होगा, ठीक है। ये हम लोग मेरा सब्जेक्ट के लिए होगा। आई विल टेक द क्लास। ठीक है सर। हाँ, वो जो मेरा जो क्लास ड्यूरेशन है ना, कल हम रामगढ़ जाएंगे, ठीक है ना, कॉलेज में। तो वर्क फ्रॉम होम था, तो कल से हम लोग कॉलेज में कुछ दिन के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे कल, इसलिए क्या होगा ना, तुम्हारा जो क्लास टाइम है हम लोग मे बी रास्ते में हो ना, आई विल ऑन द वे आई थिंक। इसलिए क्या होगा, सेकंड हाफ में होता तो फिर हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया, क्लास टेस्ट ले लूंगा, और ठीक। और जो नेक्स्ट मंडे होगा ना, तो लैब के बाद हम लोग एक थ्योरी क्लास ले लेंगे, तो मेकअप हो जाएगा, क्यों? ठीक है। सर जो 19 तारीख को होने वाला था सर, हैं? सर जो 19 तारीख को क्लास टेस्ट होने वाला था वो वाला। और 19 तारीख सर वो पूछ रहे थे, आप बोले कि पहले 19 तारीख को लेंगे, वो वाला टेस्ट कब लीजिएगा? वो बोला इसी पे मेकअप हो जाएगा ना। ओ इसी का मेकअप हो जाएगा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इस तारीख को नहीं लेंगे, हाँ। कल जो एक्सपेरिमेंट लूंगा ना, वो मेकअप हो जाएगा, क्योंकि 19 हम नहीं लेंगे शायद। नोटिस तुम्हारा आ जाएगा जून का 8 तक, तुम्हारा शायद मिड सेम भी बाईस हो बाईस या जाएगा। तेईस को, 22 या 23 को है। हाँ वही मैंने सुना। तो नोटिस नहीं दिया है, नोटिस दिया है क्या? नहीं दिया है। नो सर, बस इंफॉर्मेशन है, हाँ 22 का हाँ 10 इन्फॉर्मेशन, बोले। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ। वही हम लोग मीटिंग हुआ था ना प्रिंसिपल मैम के साथ, तो उसी टाइम मैम ने बोला कि 8 तक होगा। तो नोटिस तो आएगा, क्वेश्चन तो हम लोग को बनाना पड़ता है, तो हम लोग हाँ एचओडी को मैसेज हम लोगों के पास आ जाएगा। सर हाँ बोलो। एग्जाम कैसा होगा सर, सब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप? कब? और मिड सेम में? मिड सेम वाला। हाँ मिड सेम में देखो, मिड सेम का पैटर्न होता है ना, वो शायद 5-6 नंबर का, वो मुझे देखना पड़ेगा। एमसीक्यू होगा, हाँ शॉर्ट आंसर टाइप होगा, लॉन्ग आंसर टाइप होगा, इस तरह के होगा, हाँ। 30 मार्क्स और 25 मार्क्स का भूल गया मैं। 30 मार्क्स का शायद, और 25 का सर 20, 25 सर का 20, 25 है ना, हाँ 25 है। सर 20 से, हाँ सर 20। 20। यस सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, 20 होगा तो हाँ 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 20 ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक एमसीक्यू भी रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, हाँ, और ब्रॉड भी रहेगा। पैटर्न जो होगा वो डिसाइड करेंगे एग्जाम से, हाँ। डिसाइड करने के बाद वो लोग हम लोगों के पास भेजेगा पैटर्न, शायद यही होगा, यही होता है। सर पहले तो वो होता था सर, पहले एमसीक्यू होता था कुछ 6 एमसीक्यू, उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स होता था, उसके बाद सर कुछ हाँ वन वर्ड में हाँ हाँ सब्जेक्टिव हाँ टाइप। हाँ हाँ वही होगा, वो जो पैटर्न है ना, शायद चेंज नहीं यस होगा। सर। हाँ हाँ वही होगा। लेकिन पढ़ाई करो है, फाइनल जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा हम लोगों को पता नहीं ना, तो थोड़ा ऑफलाइन होगा ना। देखो ना, लास्ट जो तुम्हारा एग्जाम था वो भी नहीं हुआ, होने वाला था, लेकिन वो तो बंद हो गया ना। हमारा जो और सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, वो तो एग्जाम नहीं हुआ ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो वो ड्यू है। ये करंट सेमेस्टर चल रहा है, क्या कोरोना ने बहुत मुश्किल में डाला। तो ध्यान से पढ़ाई करो, हाँ मॉड्यूल 2 का 20 मार्क्स का हम लेंगे। तो A4 शीट में तुम लोग लिखोगे, लिखने के बाद वो अपलोड कर दो, हाँ। ठीक है, इंटरव्यू में अच्छा नंबर, ठीक है, लाना आवश्यकता है, क्योंकि 70 मार्क्स का वो कैसे पैटर्न क्या होगा खुद को भी मालूम नहीं है। तो पढ़ाई करो ठीक से, ओके, खत्म करते हैं आज के लिए।